یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی کی مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت. کہا دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل. اراضی کے ریکارڈز میں شفافیت لانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے شروع کیے گئے آپ کی زمین آپ کی نگرانی نامی فلیگ شپ پروگرام کے مثبت نتائج. اقدام کے تحت اب تک 7 کروڑ 70 لاکھ دستاویزات کو رکھا گیا آن لائن دستیاب. موسم میں بہتری آتے ہی شری امرناتھ جی یاترا بحال. مجموعی طور پر اب تک 2,96,926 یاتریوں نے پوتر گپھا میں کیے شیو لنگم کے درشن. اور ملکی سطح پر سرگرم کووڈ مریضوں کی تعداد گھٹ کر ہو گئی 1,29,812. جموں کشمیر میں نئے 741 مثبت معاملات کی نشاندہی. خبروں کی تفصیل سے پہلے پیغام. چونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر پھر سے عمل کریں. خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد سے جلد لگوائیں. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. دونوں فریقوں نے شراکت داری کو تقویت بخشنے، تجارت، رسل و رسائل اور عوام سے عوام تک کے رابطے کو مستحکم کرنے اور دیگر معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے گریٹر مالے میں 4,000 ہاؤسنگ یونٹ تعمیر کرنے کے پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ بھارت 2,000 یونٹ تعمیر کرنے کے لیے اضافی مالی معاونت فراہم کرے گا. وزیراعظم نے بھارت اور مالدیپ کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبے میں بہتر تال میل کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان مفادات کی پاسداری کرتی ہے بلکہ پورے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے. مالدیپ کے صدر نے کہا کہ ان کا دورہ بھارت دونوں ملکوں کے درمیان گہری دوستی کی عکاسی کرتا ہے. بھارت اور مالدیپ نے اس موقع پر سائبر سیکیورٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پولیسنگ کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے سے متعلق کئی معاہدوں پر دستخط کیے. اس سے پہلے مالدیپ کے صدر 4 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے. ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی بھارت کے دورے پر آیا ہوا ہے. رسل و رسائل کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ملک میں 5G ٹیلی کام خدمات اس سال اکتوبر مہینے تک شروع کی جائیں گی. نئی دلی میں رپورٹروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5G آکشن کے دوران 1,50,000 کروڑ روپے سے زائد کے بڈ موصول ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 5G خدمات فراہم کرنے کے لیے کامیاب بڈر کو اسپیکٹرم الاٹ کیا جائے گا. آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ موجودہ حکومت فلیگ شپ پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا اور میک ان انڈیا جیسے کئی پالیسی اقدامات عملا رہی ہے تاکہ ملک میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو فروغ حاصل ہو سکے. انہوں نے کہا کہ شروع ہونے والی 5G خدمات سے تجارت اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. جموں کشمیر حکومت نے اراضی سے متعلق ریکارڈ کے بارے میں مزید شفافیت، آسانی اور شہریوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کی غرض سے آپ کی زمین آپ کی نگرانی نامی ایک فلیگ شپ پروگرام شروع کیا ہے. اس اقدام کے تحت لوگ آن لائن CIS پورٹل پر سے دستاویزات کی سکینڈ کاپیاں نکال سکتے ہیں. سرکار کی طرف سے جاری ایک پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اقدام DILRMP کا کلیدی حصہ ہے اور جموں کشمیر نے عام لوگوں تک قابل اعتماد اور شفاف خدمات پہنچانے میں کافی پیش رفت حاصل کی ہے. پریس نوٹ میں مزید کہا گیا کہ 7 کروڑ 70 لاکھ ریونیو دستاویزات کو آج تک سکین کیا گیا ہے اور 6.5 لاکھ شہریوں نے اپنے دستاویزات آن لائن پورٹل پر دیے گئے ہیں. UT کے لوگوں نے حکومت کی اس اختراعی اقدام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس قدم سے اراضی کے بہتر رکھ رکھاؤ اور خرد برد پر قابو پانے میں مدد ملے گی. اولو انڈیا کی CEO
अंकित गुप्ता ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एलजी को प्रोजेक्ट क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों में रोजगार की ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने की खातिर 200 होम स्टेज कायम करने के हवाले से हासिल की गई पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी। सीईओ ने एलजी को बताया कि होम स्टेज मालिकान को ओयो की तरफ से लाजमी तरबियत दी जा रही है और सोशल मीडिया पर होम स्टेज के मुतालिक बेदारी भी पैदा की जा रही है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि इस साल 15 अगस्त से पहले 75 होम स्टेज का इफ्तिताह किया जाएगा। एलजी ने गुनागो सकाफती विरसे और रिवायत को मलहूज रखते हुए सयाहों के लिए मियारी रिहायशी सहूलियात कायम करने के लिए ओयो ग्रुप की तारीफ की। वाज़ेह है कि मिशन यूथ के तहत यूटी इंतजामिया 500 नौजवानों को होम स्टेज कायम करने की खातिर 50,000 रुपए की मुराद फराहम कर रही है। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से आज दोबारा बहाल हुई। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि यात्रा के रास्ते पर मौसम इंतहाई खुशगवार है और आज सुबह 400 से ज्यादा यात्री ननवन के बुनियादी कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। बालतल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने इतला दी है कि आज सुबह यात्रा बहाल होते ही 1062 यात्री पर मुश्तमिल एक और जत्था बुनियादी कैंप से गुफा की तरफ रवाना हुआ और इस रास्ते से दोपहर 4 बजे तक 2286 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। उधर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि आज सुबह 570 यात्री जम्मू के भगवती नगर कैंप से बालतर और पहलगाम की तरफ रवाना हुए। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कैप्टेरिया मोड और मेहाड़ के मकाम पर रुक रुक कर पत्थर गिर आ रहे हैं, ताहम शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। मजमूई तौर पर आज तक 2,96,926 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। दरी असना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में नाग पंचमी के मौके पर आज दोपहर अमरेश्वर जी मंदिर अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर में छड़ी मुबारक की छड़ी पूजन अमल में लाई गई। पूजा अर्चना में काफी तादाद में श्रद्धालु और साधुओं ने शिरकत की। नागडंडी आश्रम अचबल में भी नाग पंचमी के सिलसिले में कल एक हवन का एहतमाम किया गया, जिसकी पूर्ण आहुति आज अंजाम दी गई, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क में सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद में कदरे कमी आई है और यह तादाद 1,29,812 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,192 मरीजों की निशानदही हुई है, जबकि इस मुद्दत के दौरान 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज शिफायाब भी हुए हैं। कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 2 अरब 4 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज मजीद 741 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई है, जिनमें से 515 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 226 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज श्रीनगर और जम्मू अजला से बेतरतीब 239 और 129 कोरोना मरीज सामने आए। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान यूटी में मजीद 445 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 261 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 184 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जा रहा है। इंतजामिया ने एक मरतबा फिर से लोगों से अपील की है कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कोविड मुखालिफ तर्ज अमल अपनाएं और जल्द अज जल्द कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगवाएं। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने नई दिल्ली में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की और मुतालबा किया कि पापोर को आलमी बैंक की मुआवनत से अमलाए जा रहे JTRP प्रोजेक्ट के दायरे में लाया जाए। उन्होंने वजीर मौसूफा को बताया कि पापोर, जो जाफरान की काश्त के लिए मशहूर है, 2014 के तबाकुन सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मुहर्रम हराम के मुकद्दस अयाम के सिलसिले में इन दिनों वादी भर में अजादारी और नवाखानी की मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। हुसैनी मजालिस के दौरान उलमाए दीन करबला के शहीदों को खराज अकीदत अदा करते हुए मुहर्रम हराम की अजमत पर रोशनी डालते हैं। इसी सिलसिले में आज नक्शबंद साहिब, ख्वाजा बाजार और कई दीगर मजहबी मकामात पर रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान उलमा ने हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की पाक शहादत, सीरत और पैगाम हुसैनी के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। जम्मू कश्मीर के दीगर जिलों की तरह जिला बांडीपोरा में भी इन दिनों मुताबिक मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें अमलाई जा रही हैं।
ان स्कीमों की अमल आवरी से जमीनी सतह पर लोगों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव देखने को मिल रहा है और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में खातिर खास सहूलियात भी फराहम हो रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे। बांडीपोरा जिले में PMGSY के मुख्तलिफ मराहिल के तहत 73 सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली थी, जिनकी बदौलत 352.05 किलोमीटर सड़क मुसाफत तामीर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में अब तक 288.65 किलोमीटर मुसाफत वाली सड़कें तामीर की गई, जिनकी बदौलत 41 इलाकों को सड़क राब्ते फराहम हुए, जिन पर मजमूई तौर 16,124.77 करोड़ रुपए का रकम खर्च किया गया है। इन सड़क राब्तों की तामीर से 97,830 अफराद को फायदा पहुंचा है। माहिगीरों की माशी और इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए PMMSY और दीगर मरकजी माहौल वाली स्कीमों के तहत माली साल 2021-22 के दौरान 279 कुनबों को कम लागत वाले मकान फराहम किए गए, जिन पर 3,24,43,000 रुपए का खर्चा आया है। जिले में 20,80,000 रुपए की लागत से 14 ट्राउट यूनिट कायम किए गए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 4,42,000 रुपए की लागत से 10 कार्प यूनिट कायम किए गए। अलावा 2,448 माहीगीरों को जिंदगी गुजर बसर करने और गुजारियत के लिए 73,44,000 रुपए की माली मावनत की गई। देरासना जिले में जल जीवन मिशन के तहत 108 वाटर सप्लाई स्कीमें तामीर करने का मंसूबा है। खबरनामे के लिए बांडीपोरा से मैं आदिल इस्माइल। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खान साहिब इलाके के जिन कुंबों की फसलों और मवेशियों को हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से नुकसान पहुंचा है, उन्हें फौरी तौर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक प्रेस बयान में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा इंतजामिया लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सेहत और तालीम महकमे की ज़ेर तामीर तमाम इमारतों को फौरी तौर से मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अवाम के नाम वक्फ किया जा सके। भारत वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 बैन अवी मैच आज रात वार्नर पार्क में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल रात वार्नर पार्क में वेस्ट इंडीज ने भारत को दूसरे T20 बैन अवी मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इस तरह 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 139 रन का निशाना मिला था, जिसे वेस्ट इंडीज ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 5 विकेट खोकर 141 रन बनाकर हासिल कर लिया। अमरीकी हुकाम ने कहा कि अलकायदा के लीडर अयमन अल जवाहिरी को खत्म हफ्ता अफगानिस्तान में CIA ने एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया है। 2011 में अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी की हलाकत इस मिलिटेंट ग्रुप के लिए बहुत बड़ा धचका माना जा रहा है। जवाहिरी एक मिस्री था जिसके सर पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा गया था। उसने 9/11 के हमले को अंजाम देने में मदद की थी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इस कार्रवाई के बारे में व्हाइट हाउस से मुल्क से खिताब किया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के साथ वफ्द की सतह की बातचीत। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी खित्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत की हामिल। अराजी के रिकॉर्ड्स में शफाफियत लाने के लिए इंतजामिया की तरफ से शुरू किए गए आपकी जमीन आपकी निगरानी नामी फ्लैगशिप प्रोग्राम के मुस्बत नताइज। इकदाम के तहत अब तक 7 करोड़ 70 लाख दस्तावेजात को रखा गया ऑनलाइन दस्तयाब। मौसम में बेहतरी आते ही श्री अमरनाथ जी यात्रा बहाल। मजमूई तौर पर अब तक 2,96,926 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। और मुल्क की सतह पर सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद घटकर हो गई 1,29,812। जम्मू कश्मीर में नए 741 मुस्बत मामलात की
نشاندہی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔